جی کے ویب ٹی وی کے ناظرین کو زبیر قریشی کا سلام پہنچے۔ آج کے اہم موضوعات ہیں: جموں کشمیر کے نوجوان بندوق کا راستہ چھوڑ کر جمہوری طریقہ اپنائیں، محبوبہ مفتی۔ کہا گوکار اعلامیہ صحیح سالم، مقصد 370 کی بحالی۔ ہمارا موقف 370 کی بحالی کا نعرہ لگا کر عوام کو گمراہ کرنا نہیں ہے، سعید الطاف بخاری۔ کہا اپنی پارٹی لوگوں کے خواہشات کی ہے ترجمان۔ آنے والے 10 دنوں میں جموں کشمیر کے لیے نئی فلم پالیسی ہوگی مرتب، لیفٹیننٹ گورنر۔ کہا رمضان المبارک کے پیش نظر نائٹ لاک ڈاؤن میں مذہبی فرائض انجام دینے میں رعایت۔ اور شری امرناتھ جی یاترا 2021 کے لیے رجسٹریشن عمل 15 اپریل سے ہو رہا ہے شروع۔ اور اب موضوعات کی تفصیل۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ آنے والے 10 دنوں میں جموں کشمیر کے لیے نئی فلم پالیسی وضع کی جائے گی جو جموں کشمیر میں 70 اور 80 کے سنہرے دور کو بحال کرنے میں مدد کرے گی۔ منوج سنہا آج SKICC سری نگر میں محکمہ سیاحت کی جانب سے 2 روزہ کانفرنس کے دوران ورچوئل موڈ پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ جنہیں 60-70 کے دشک میں ممبئی فلم انڈسٹری کا فیورٹ ڈیسٹینیشن مانا جاتا تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی مجھے لگتا ہے کہ سینکڑوں ان ایکسپلورڈ ڈیسٹینیشنز بھی ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ ساروجنک اور نجی نویش کے مادھیم سے وہاں اتیادھنک سنسادھنوں کو وکست کرنے کی دشا میں کام پرارمبھ کیا گیا ہے، اور ہفتے 10 دن کے اندر جموں کشمیر پرشاسن ایک نئی فلم پالیسی لے کر کے آ رہا ہے جس سے ہم کشمیر کے گولڈن ایرا کو واپس سلور اسکرین پر لا سکیں گے۔ ساتھیوں، میرا پورن وشواس ہے کہ اس پریچرچا میں جن وشیوں کو شامل کیا گیا ہے وہ اس دشا میں ایک روڈ میپ پر کام کریں گے۔ پورے وشو میں کورونا مہاماری کی وجہ سے سب سے زیادہ پربھاوت ٹوریزم سیکٹر ہوا ہے۔ جموں کشمیر میں ٹورسٹ تتھا عوام کے سواستھ سے بنا کوئی سمجھوتا کیے ہوئے ہم نے کئی قدم اٹھائے ہیں جس سے ٹوریزم کا ریوائول ہو سکا ہے۔ دریں اثنا محکمہ سیاحت کے سیکریٹری ارون سنگھ نے امید ظاہر کی ہے کہ جموں کشمیر میں کووڈ کی وجہ سے سیاحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور سرما کی طرح ہی گرما میں بھی سیلانی اسی طرح جموں کشمیر کا رخ کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے کووڈ کے کیسز بڑھ رہے ہیں، بٹ جموں اینڈ کشمیر میں اتنا اس کے بارے میں لوگوں کو چنتا نہیں ہے، اور انتظامات ہیں، ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، ایئرپورٹ پہ ہو رہی ہے، جگہوں پہ ہو رہی ہے، تو مجھے نہیں لگتا تھوڑے دن پرینام ہوگا۔ میں نے کچھ ہوٹل ویوسائیوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ کینسلیشنز ہو رہے ہیں لیکن وہ بیک اپ کر پا رہے ہیں، تو مجھے تھوڑے بہت کچھ دنوں کے لیے، ہفتے 2 ہفتے کے لیے ہوگا یہ ایسا اس کا اثر، بٹ پورے سمر سیزن میں اس کا اتنا وپریت پرینام نہیں ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ سمر سیزن بھی اچھا ہوگا جیسے پچھلا ونٹر سیزن ہوا تھا۔ دیکھیے، جہاں تک کووڈ کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ اٹ از ناٹ جسٹ ہیئر، اٹ از ایوری ویئر ان دا ورلڈ ویئر ٹورزم انڈسٹری ہیز سفرڈ۔ ہمارے یہاں پہ وی آر ٹرائنگ ٹو ٹیک آل دا پریکاشنز اینڈ آل دا کووڈ پروٹوکالز آر بینگ فالوڈ۔ جس وقت کووڈ کا وقت تھا اور بہت مشکل دور تھا، وی ڈڈ ناٹ ویسٹ ٹائم اینڈ وی یوٹیلائزڈ اٹ فار بلڈنگ کیپیسٹی۔ وی ہیو ورک ویری کلوزلی ود دا ٹریول ٹریڈ ایز ویل ایز دا سروس پرووائڈرز اینڈ ٹرائی ٹو ڈو سم کیپیسٹی بلڈنگ پروگرامز، جیسا ایک چھوٹا سا کلپ ہیتو صاحب نے وہاں پہ دکھایا بھی فار کووڈ پروٹوکالز۔ ایک بات تو یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اٹ از اے ڈیولپنگ سچویشن، ایوری ڈے تھنگس turn differently, sometimes the graph goes up, sometimes it goes down, but let me tell you, the travel trade in Jammu and Kashmir saw an opportunity in COVID as well, after when the COVID position improved, and the opportunity was that there are a number of people in the country who have not traveled, who want to travel. There are so many people, because of the ban on international travel, who have not been who have not been able to go abroad. I think it's time for us. That is the reason why our travel has been, our industry, tourism was so successful during winters also. We tried to tap all these people and try and bring them to Jammu and Kashmir. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر کے تمام ضلعی کمشنروں اور SPs کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ رمضان المبارک کے دوران نائٹ لاک ڈاؤن میں نماز تراویح و دیگر مذہبی فرائض ادا کرنے کے دوران لوگوں کی سہولیات کا خاص خیال رکھیں۔
ज़िला डोडा के सब डिवीजन गंदवा ठाठरी में आज मुसाफिरों से बड़ी एक गाड़ी रौंदी के नज़दीक हादसे का शिकार होकर 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में कम से कम 5 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 4 जख्मी हुए हैं। हादसा जाहिर किया जा रहा है कि इस तादाद में मज़ीद इजाफा हो सकता है क्योंकि मज़कूरा मेटाडोर मुसाफिरों से भरी हुई थी। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस, सिविल इंतज़ामिया, हुक्काम और आम लोग बचाव कार्रवाई में जुट गए और जख्मी अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। PDP सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के नौजवानों से बंदूक छोड़कर जमहूरी तरीके को इख्तियार करके अपने हकूक़ के लिए लड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि हम दुनिया को बता सकें कि ये दहशतगर्द हैं। उनका कहना था कि पीपल्स अलायंस पर गुपकार एलामिया अभी भी सही और सालिम है और इसका बड़ा मकसद दफ़ा 370 की बहाली के लिए लड़ना है। मौसूफ़ा ने इन बातों का इजहार एक तकरीब के हाशिए पर नामानिगारों के साथ गुफ्तगू के दौरान किया। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखें इस वक्त तो बंदूक के खिलाफ माहौल है। जो तहरीक जिसमें बंदूक शामिल हो जाता है वो हमेशा नाकाम होती है। तो इसलिए अगर हमने अपनी तहरीक को चलाना है, जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से हम संजीदा हैं, तो हमें बंदूक को तर्क करके जमहूरी रास्ता अपनाना चाहिए और दोनों मुल्कों को, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मजबूर करना चाहिए बातचीत के लिए। हालात तो बहुत ख़राब है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बंदूक उठाते हैं और शायद कुछ लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवान बंदूक उठाए और हम दुनिया को बताएं कि ये दहशतगर्द हैं, इनका कोई मसला नहीं है। तो इसीलिए मैं गुजारिश करती हूँ बार बार जवानों से, बंदूक में अपनी जान मत गवा, बल्कि एक जमहूरी तरीके से बात करो। आज नहीं सुनेंगे, कल नहीं सुनेंगे, मगर आखिरकार दोनों हिंदुस्तान और पाकिस्तान को यहाँ के लोगों की बात सुन के जम्मू कश्मीर के मसले का हल निकालना पड़ेगा। बाजी, आपने अभी अंदेशा दिया कि मैं रहूं बाहर या नहीं रहूं, इसका क्या मतलब था? थोड़ा सा ये बताइए, वजाहत कीजिए। नहीं, देखिए, जिस तरह से ये मरकजी सरकार PDP के पीछे लगी हुई है, हमारी पार्टी को तोड़ रही है, धमकाती है, लालच दे के हमारे लोगों को निकाल रही है, और मेरे पीछे भी पिछले 2 साल से पड़ी हुई है कि कुछ मिले, इसके खिलाफ कोई करप्शन हो। जब कुछ नहीं मिला तो आप मेरी माँ को कॉल किया, हो सकता है मेरी बच्चों को भी कॉल करे, हो सकता है मेरे भाई को भी कॉल करे मुझ पे दबाव डालने के लिए, और लगता है अगर ये दबाव भी नहीं चला तो हो सकता है मुझे ही अंदर कर दे, कुछ भी हो सकता है। 7वें तनख्वाह कमीशन की सिफारिशात को लागू कराने के मकसद से आज एम्प्लॉइज़ जॉइंट एक्शन कमेटी और वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। उन्होंने आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकिली का भी मुतालबा किया। EJAC के सदर मोहम्मद रफ़ीक मीर ने कहा कि अगर ये एक नेशन है तो जम्मू कश्मीर में दूसरे ज़वाबित क्यों अमलाए जा रहे हैं। सेशन का आज प्रोटेस्ट है, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है हमारी एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की एक इकाई है। यही वजह है कि जो सारी लीडरशिप यहाँ पर है एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की, वो इनके इस प्रोटेस्ट में बराबर शामिल है और इनके इश्यूज़ की भरपूर हिमायत करते हैं। इनका इशू ये है कि पिछले 20 महीने से जब से यूनियन टेरिटरी बनी है, वक्फ बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया है। विद द रिजल्ट जो उनके इश्यूज़ हैं, डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं, एम्प्लॉयज़ के इश्यूज़ हैं, बाकी मामला हैं, सारे के सारे पेंडिंग हैं। डिमांड ये है कि एक रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए वक्फ बोर्ड को, ताकि डिसीजन मेकिंग हो और यहाँ पर जितने भी मामला और मसाइल हैं उनका हल निकल आए। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2021 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल 15 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ये रजिस्ट्रेशन अमल दोनों बालतल और चंदनवाड़ी के रास्तों के लिए होगा। 26 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा का आगाज़ 28 जून से होना है। ज़िली कमिश्नर कुलगाम ने आज स्पोर्ट्स स्टेडियम कुलगाम में लड़कियों के लिए T20 ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुलगाम ने कहा कि इस तरह के खेल मुकाबले नौजवानों के समाजी और जहनी इर्तिका में मुआविन साबित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज कुरान मजीद से 26 आयात को हटाने से मुतल्लिक अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने वसीम रिजवी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया है। याद रहे कि वसीम रिजवी की दरख्वास्त के बाद गुज़श्ता दिनों एक इस्लामी कॉन्फ्रेंस में वसीम रिजवी को इस्लाम से खारिज करार दिया गया था और उन्हें किसी भी कब्रिस्तान में दफन नहीं करने का ऐलान किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में शिया और सुन्नी उलमाए किराम शामिल हुए थे। वसीम रिजवी के भाई ने भी वीडियो जारी करके ऐलान किया था कि वसीम से उनके कुंबे का कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा पूरे मुल्क में रिजवी के खिलाफ एहतजाज हुआ था और वसीम रिजवी पर बहुत सारे बदअनवानी के मामले भी दर्ज हैं।
जनूबी कश्मीर के काजीगुंड में आज अपनी पार्टी की जानिब से कन्वेंशन का इनेकाद हुआ, जिस दौरान पार्टी को मजबूत बनाने और बुनियादी रुकनीत की मुहिम पर जोर दिया गया। इस मौके पर पार्टी सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दफ़ा 370 की बहाली के नारा को लेकर अवाम को गुमराह करना नहीं है, बल्कि इनका मकसद जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलाने के साथ साथ दीगर अहम मामलात को निपटाना है। देखिए, हम हकीकत एक बयान कर रहे हैं कि 370 और 35 ये या सुप्रीम कोर्ट वापस कर सकती है या पार्लियामेंट कर सकता है, और मुझे लगता है ये हमारा फ़र्ज़ है कि सच बोलें, लोगों को धोखे में ना रखें। और हमारा जो कोर एजेंडा है अपनी पार्टी का है वो है स्टेटहुड, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। नौकरियों का जो तहफ़्फ़ुज़ करना था अपने नौजवानों के लिए वो हमने करके दिखाया। ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ इंशाल्लाह 95% वो भी करके दिखाया। तो मैं तो वही बात कहूँगा जो सच है, और मैं अपने लोगों में जब जा रहा हूँ तो यही पैगाम लेके जा रहा हूँ कि साहब अब सच बात ये है, सच की सियासत ही करनी है, और अमन व कानून में यकीन रखिए, अमन रखिए, क्यों अमन में ही हमारी भलाई है। यहाँ काफ़ी सारे सियासी पार्टियों का शायद शौक़ ये होगा कि जितनी यहाँ बदअमनी होगी उनका उसी में फ़ायदा हो रहा है। मुझे लगता है कि नहीं, अपनी पार्टी का यकीन है कि यहाँ अगर अमन बहाल होगा, हमारे नौजवानों के फ्यूचर की हम ज़्यादा ज़मानत, सेफ़ फ्यूचर की ज़मानत दे सकते हैं, उनकी जॉब्स और बाकी चीज़ों की ज़मानत दे सकते हैं। यही तो मुद्दा और मकसद है हमारा इस वक्त। और आखिर पर यह खबर कि बिजली फीस में इजाफे को लेकर आज श्रीनगर के खानियार में लोगों ने महकमा PDD के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने बिजली बिल्स हाथ में थमा रखे थे और बिजली फीस में हुए इजाफे से नालां थे। खुदाई कहर गो कारोबार गो डाउन, लॉकडाउन गसान वन तो कपर जेनो तो कपर दिमो अमिस यूत चीज हेको बरित खानियार करान अपील गवर्नमेंटस पे इंसाफ। यह पड़ खदिक 200 रुपये 200 रुपये यह इंसाफ, यह खसान यूत खसान अकी साथ प्रे चीजस गसान डबल 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 डबल। अगर रुपये 10 बनान 20 हेवान, यप गई 2 वरी बिहित, यप कार तहन अयाल बारी वन तो गो तो गो कोत यह फीस अनो तो अनो कत कहें हेकान कर। अल्लाह ताला कर रूसन पे तो नजर सनी तमें तरीके ये गो आज़ाद। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि उर्दू खबरों का यह बुलेटिन ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। इसके साथ साथ समाजी राब्ते की वेबसाइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद हमारे सफ़ों पर भी आप इसे देख सकते हैं। अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।